Cool. I'm gonna start it. So, okay, we eventually come here to upgrade our skills, and most of the people are basically struggling for Switch, right? If I'm not wrong. That's why this batch we have started, and that's the end goal. I hope you all gone through the whole curriculum of the batch. Okay, so before software, we also covered this dispatch queue, multi-threading, barrier, semaphore, and operations. And then we started with software. So the point is, why we doing all these things, right? Because to clear decent product based company interviews, and we get into it, right? Kind of. So let me quickly run few polls to get an idea. Major challenges right now. So either you're not getting interview calls, okay? Just let me put. Hmm, just a second. Okay, okay. So even you can have multiple also, but in this pool, if you have multiple, you can even put in the chat. Okay, I'm launching the pool. So I'm asking your major challenges, which is either you're not getting interview calls at all, you're very rare, or you are struggling with the technical rounds specific to iOS or DSA round. Like, or you can have both or all of them also. So if both or all of them, then put in the chat section. Okay. Could you please vote for this poll? The poll is live. You can see. I want everyone's vote. Please vote. 24 people are here. 23. So DSN as technical. Okay, cool, Imran. Thanks. If you have more than two or three options you want to select, please ping in the chat section like Imran. So basically, I should know at least your challenges so that I can address them, right? If I'm not aware about your challenge, even this thing I'm practicing since we started uh, around 3 weeks back. I even connect with one-on-one people to get their concerns and where they're exactly struggling. So yeah, but this thing, most of the audience, this is new. So I haven't get a chance to connect with you. So at least I'm asking in this session, and I will later connect with you on one-on-one also. But yeah, for now, at least at a decent a brief, I can get an idea. Taran saying lack of confidence, DSA, and as technical. So all three kind of. But you are getting interview calls, but because of confidence and because of uh, technical skill, you're not able to clearing the rounds. Am I right? Is that you mean? Cool. So total 15 votes still. Some people are not voting. Please vote if you still haven't voted. So out of 15 votes, 6 votes are saying not getting calls. One is iOS technical and DSA 9 people are saying. Okay, and 3 people mentioned the chat. So around 20 votes we get. Got. Cool. Prashant Singh not getting call because of notice period iOS technical. Okay. Rahul saying get plus explain architecture. Cool. Okay. Anyone else who haven't either vote or chat is pending, please do it. We are ending this poll in next 30 seconds. It's very important. The whole intention of the
This batch is behind to get the good product based companies to clear all these rounds, and you get those that confidence and good understanding enough so you can easily crack your rounds. And also, if you're not getting interview call, how to get interview calls, that also the thing. So I'm actually having session tomorrow on that, so I'm not going to in details much. We'll go tomorrow on that, but at least you can implement these things on your resume part or on your LinkedIn, and how to get a genuine reference. We look into that. Cool. So I'm ending the poll right now. We got 16 and in chat section 5 6. So total almost 21 people gave their opinions and shared. Cool. Thanks. So major challenges, like either not they are not getting calls or DSA round or both, like iOS and DSA both. So even in the beginning, we have mentioned ki we're not going to take DSA topics as a teaching or as a, like, as a session, but we are going to do some practice session basically. So what is practice session is meaning, we are starting this DSA sessions from this coming week, like in the next week. So DSA, the thing is, let me first cover this DSA point. It's one of the major challenges of all of us. Like basically, even I have rejected multiple times in DSA. So sometimes I cleared, sometimes I rejected because of the practice thing. So what happened, like in college time, I used to do DSA, not that great level, but at a medium decent level, you can say. So I cleared a few of the good companies at that time, the DSA rounds. So, but later on, if we forgot the, like we haven't that in touch and we not into in that much practice, so basically आपका touch छूट जाता है DSA का, right? So basically you need to more practice of DSA questions and more, the concepts basically or the algorithms you need to practice. अब उसमें से कई लोग ऐसे हैं, even I know who those who haven't ever tried DSA part kind of or DSA questions so far in their career. Whoever so else, like they can raise your hand or thumbs up. You haven't tried at all, even in the college time or even in your last few career, right? So you need to start from kind of beginning. And those people who already tried but for now like कुछ time से practice नहीं की, that's why they are bit of struggling. तो ये दो अलग context है, दोनों पे आएंगे हम लोग. So okay, cool. तो डीएसए को अगर मैं एक ब्रीफ करूं तो बहुत एक्चुअली इतना टफ नहीं है और उतना इजी भी नहीं है, बट इट्स नॉट दैट टफ एक्चुअली. इफ यू बेसिकली सी normal string array dictionary, so we use normally in day to day, right? In iOS, if I'm talking about the context of iOS and Swift, we normally use array, strings, and dictionary, you can say. But yeah, if we go beyond that, like linked list, stack, queue, we normally don't use, or if we even use stack, if you say in the navigation stack, right? In UIKit or even Swift UI, so we use navigation stack. Right? Even in queue, we say ki it's a queue, serial concurrent queue. It's a kind of queue. So we are basically using these concepts, but at very basic level, not going into like that particular algorithms part or the DSA part. We are just simply understand, okay, how queue works, like first in first out kind of thing we know of a queue, and we also know in the what stack, like push in push out wala thing, or first in last out, last in first out kind of, right? That kind of thing we know, right? That is, at least that basic we know. But now if we come to, if we give you, I give you some problem, like consider a linked list. Again is a very easy data structure. So linked list में अगर आप, if you're not able to traverse a basic linked list, और अगर आपको उसमें एक node delete करके दोनों, suppose there's a linked list, okay, 5 nodes, I'm saying you कि delete the middle node out of that 5 nodes, delete the second or third one. So how you will do it? So that you need to actually, do some practice, go through some conceptual things, some understanding of it. So yeah, two pointer you can use, Imran. Yeah. So the point is there are approaches and algorithm you can use, even some, hit and trial things also there, some good practices also there, some good algorithms are there, which gives you less time complexity, some gives you high time complexity. Okay. So first thing to at least first try to solve that problem. Okay. Don't go in the best optimum approach initially if you're starting with DSM. Otherwise you मतलब वो बहुत ज्यादा heavy हो जाएगा थोड़ा. तो फर्स्ट की ऐसे ट्राई करो कि जैसे पैलेंड्रोम का एग्जांपल ले लो, बहुत बेसिक हम कॉलेज टाइम पे कर रहे थे. पैलेंड्रोम इज अ वेरी बेसिक, उसमें आप पहले पैलेंड्रोम बेसिक इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, एक फॉर लूप लगा के समथिंग लाइक दैट, राइट?
उसके बाद देखो कि उसको और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली लाइक कि कैरेक्टर्स काउंट इन अ स्ट्रिंग, राइट? ये बहुत फेमस और इजी क्वेश्चंस हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं, वैसे इससे टफ ही पूछेंगे, इससे इतने इजी नहीं पूछते। बट मैं आपको जैसे एग्जांपल देना, फिर स्टार्टिंग में डीएसए गो विद द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ओके, तो इसके लिए हम प्रॉपर कंटेंट मटेरियल क्वेश्चंस आपको देंगे, एंड वी एक्चुअली, जो मैं बोला प्रैक्टिस सेशन का मतलब ये है कि फॉर you can say in every week we are going to take a follow up of DSA topics and questions, और हम लोग डीएसए का अलग से ग्रुप बनाएंगे, वहां पे डीएसए के रिलेटेड डिस्कशंस एंड फॉलोअप्स होंगे। तो उसमें हम लोग की एटलीस्ट प्रैक्टिस होंगी, हम पुश करेंगे आपको, और ऑब्वियसली आपको एफर्ट खुद से लेना पड़ेगा डीएसए के लिए, ठीक है? तो डीएसए अगेन मैं बोल रहा हूँ, कुछ देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस। आप सिंपली कॉन्सेप्ट देखोगे, वीडियो कोई देखोगे, आर्टिकल पढ़ोगे, समझ जाएंगी चीजें। नहीं समझेंगी तो हम बैठे हैं, हम आपको गाइड करेंगे। बट द पॉइंट इज कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ के सिंपली यू नीड टू इम्प्लीमेंट और यू नीड टू ट्राई सम क्वेश्चंस। इनिशियली आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, यू गो सी द सम प्रैक्टिस सॉल्यूशंस एंड ऑल, and then gradually you will grab it and then you will able to like solve it yourself itself, मतलब खुद से कर पाओगे आप। getting this point? If you are agree with this you can thumbs up, कि आपको थोड़ा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखने, एल्गोरिथम्स देखने, देन स्टार्ट विद द इजी प्रॉब्लम्स। एक और बात बता दूं मैं, नॉर्मली 90% कंपनीज टारगेट इजी एंड मीडियम बेस्ड क्वेश्चंस ओनली, हार्ड वाले लेवल पे नहीं जाते हैं। मीडियम लेवल तक अगर आपका बन पा रहा है, 90% कंपनीज आप क्रैक कर लोगे डीएसए राउंड्स, ठीक है? दैट इज द ट्रूथ एक्चुअली। हार्ड लेवल पे बहुत कम कंपनीज पूछती है, और अगेन द पॉइंट इज, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जितने प्योर फ्रेशर होते हैं उनके लिए डीएसए के राउंड टफ होते हैं, और जितने हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं उतना हमारे लिए डीएसए लेवल कम हो जाता है। इट एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपका एक्सपीरियंस लेवल एंड दिस डिफिकल्टी लेवल ऑफ डीएसए राउंड्स। सो अभी हम लोग मोस्टली तो एक्सपीरियंस क्राउड है, तो मैं उस कंटेक्स्ट में भी कह रहा हूँ कि इजी रहेगा आप लोगों के लिए, और अगर प्योर फ्रेशर भी हो तो भी उतना डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो आप, हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पहले हम ये टारगेट करेंगे, एटलीस्ट इजी मीडियम क्वेश्चन हमसे बन पा रहे हैं, उतना करके भी आप आराम से, जैसे हम बोलो 90% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यू कैन क्रैक, or 90% decent companies you can crack. Okay. So if you really want to improve your DSA, I will run a poll in the group, in our WhatsApp group. You poll it. I will add you in a separate group, because DSA related discussion will not going to involve in our normal group. We'll take it separately. Okay. So if anyone any questions, any concern on this, raise a hand or thumbs up, or you can ask some anything on this. Cool. Okay. Then come to कि अभी इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं। इंटरव्यू कॉल्स, इफ यू नॉट गेटिंग इंटरव्यू कॉल्स एट ऑल, तो दैट्स अ कंसर्न, राइट? अभी मुझे एक बात बताओ, इफ यू रियली, आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, तैयारी कर ली, हैंड्स ऑन कर लिया, प्रोजेक्ट्स बना लिए, उसके बाद भी अगर कॉल ही नहीं आ रहे, तो भाई वो वही वाली बात होगी ना, कि जैसे मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सपोज दिस माय प्रोडक्ट, ओके, मैंने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अब इसको मैं बेच ही नहीं पा रहा हूँ, कस्टमर्स ही नहीं आ रहा है, तो फिर ये मेरी पूरी मेहनत जो प्रोडक्ट बनाने में लगी वो सारी वेस्ट हो गई। इट्स लाइक दैट, हम लोग भी एक तरीके से प्रोडक्ट है, ठीक है? हम अपनी स्किल्स के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ मैं, अब हमें अपनी स्किल्स बेचने हैं काइंड ऑफ, ठीक है? आपको अपने को प्रेजेंट करना है, पर प्रेजेंट इस तरीके से करना है और इस तरीके से नेटवर्क में करना है कि आपको आगे से लोग रीच आउट करने चाहिए। ये सारा खेल है इसका, हायरिंग का, राइट? ये इंटरव्यू कॉल्स लेने का। अब एक, लेट मी गिव यू द कंटेक्स्ट कि जब अभी 2025 चल रहा है, जब मैं बात कर रहा हूँ 2018-17 की, उस टाइम पे लाइक मोस्टली 7-10 years बैक, दैट टाइम लाइक नॉर्मली नौकरी अप्लाई बटन, लिंक्डइन अप्लाई, ठीक है, इंडीड, नौकरी, व्हाटएवर, और बिग शिफ्ट, कट शॉट, इंस्टायर, it's completely fine. You simply click the apply button, you get a call normally if you have a decent profile. But nowadays, even if you have decent profile, good resume, good LinkedIn profile, still not working, things not working, ठीक है? Still आपको कॉल नहीं आएगा। Anyone facing this thing, you can raise a hand or thumbs up. क्यों नहीं आता है कॉल? There's a reason behind it. Actually, आपको, मतलब अगेन टेक एन एग्जांपल, आप खुद एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के देखो, जो सामने रिक्रूटर है, ठीक है, जो कंपनी हायर कर रही है, तो दे आर एक्चुअली जस्ट, जैसे ही वो पोस्ट करते हैं कोई ओपनिंग, 500 से 1000 एप्लीकेशन आ जाता है विद इन फ्यू आवर्स और विद इन अ डे में। तो अभी ऐसे देयर इज नो एज सच एल्गोरिथम और एआई और समथिंग लाइक दैट हु एक्चुअली रैंकिंग योर रिज्यूमे इन अ सच अ ऑर्डर कि कौन से बेस्ट रिज्यूमे और कौन से वर्स्ट है। एटीएस टाइप की चीजें होती है, कीवर्ड्स के साथ फिल्टर होती है, फिल्टरिंग होती है, पर सॉर्टिंग नहीं होती है सच, ठीक है?
तो अब क्या ऐसा है कि आपके ऑलमोस्ट रिज्यूमे सबने अच्छे बनाए तो आप सभी सेम कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, मान लो 1000 लोगों ने अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 800 people have good decent resume or with good ETS and all that thing. अब वो 800 या 600, मान लो 600 resume is enough और decent, उस 600 में से ओपनिंग तो गिनती की 2 या 4 निकलती है या 1 निकलती है, तो उस 2 ओपनिंग के लिए 600 एप्लीकेशंस, 2 ओपनिंग 600 एप्लीकेशन। अब आप समझ रहे हो, तो उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो रिक्रूटर है। अब वो ऑब्वियसली अगर आप भी उनकी जगह होंगे तो 600 प्रोफाइल खोल के नहीं बैठोगे आप स्टार्ट करोगे लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या जो ऊपर टॉप पे इनिशियली आई है उनके साथ यू स्टार्ट द सर्चिंग, मतलब वो एक एक प्रोफाइल ओपन करोगे। और फिर कई बार ऐसा होता है कि इनिशियल 1500 प्रोफाइल्स में उनको डिसेंट कैंडिडेट्स मिल गए, उनको कॉल गया, इंटरव्यू कॉल शेड्यूल हो गया एंड गेट इट डन। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कई बार आपकी प्रोफाइल खुलती ही नहीं है, इसलिए को कॉल नहीं आता। आप बोल रहे हो इतना सही रिज्यूमे बना दिया, सब कुछ सही कर दिया, फिर भी कॉल नहीं आ रहा, बिकॉज कि आप लोग उसके भरोसे बैठे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अप्लाई बटन वर्क नहीं करता 2025 में। अब अप्लाई बटन बहुत रेयर है कि आपको कॉल आएगा उससे, तो आप गलत मत समझने। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोफाइल बेकार है, पर उसका अप्रोच ही, अप्रोच गलत है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैं खुद अपने केस में पिछले अराउंड 4-5 साल से मैंने अप्लाई बटन नहीं दबाया किसी भी कंपनी का, कहीं भी, लिंक्डइन से लेके कोई भी जॉब पोर्टल हो। तो मैं क्या करता हूँ, वही ओपनिंग निकलती है मैं रेफरल लगाता हूँ। और रेफरल कैसे लगता है, आप कैसे कर सकते हो चीजें, उस पर हम इवन मे बी इट्स बेटर टू डिस्कस टुमारो, बट यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप अप्लाई बटन के भरोसे बैठे हो तो मत करो ये चीजें। लिंक्डइन अपना सही करो, एक्टिव रहो लिंक्डइन पे, और रेफरल वहां से आप लेकर आओ, तो वो बहुत सही चीज वर्क करती है। मेरे केस में अगर मैं 10 लोग को रीच आउट करता हूँ, ये 10 जॉब्स के लिए रीच आउट करता हूँ, 10 में से 8 बार मेरे को कॉल, ये रेफरल मिल जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ गुड प्रोफाइल, ठीक है, एक्टिव डिसेंट प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एंड माय रिज्यूमे, दैट्स इट। अब एक बात और ध्यान रखना कि आप बोले कुशल, ओके सपोज अभी रिसेंटली उबर में ओपनिंग निकला था या जोमेटो में निकला, आप रीच आउट करोगे तो आप जिसको रीच आउट कर रहे हो, आप जैसे और 20-30-50 लोग हम जैसे और रीच आउट कर रहे हैं उनको, राइट? तो अब आपके बाद भी सपोज करो आप भी उनकी जगह पे हो, तो आपको कोई 20 या 30 या 40 लोग रीच आउट करेंगे कि भाई आपकी कंपनी में ओपनिंग निकली है, तो आप सबको रैंडमली 20 या 30 लोगों को तो मैं रेफर नहीं कर सकता हूँ, राइट? आप नहीं कर सकते रेफर, आप करोगे तो 1 या 2 लोगों को ही। तो आप फिर कंपेयर करोगे, यू कंपेयर दोज ऑल 20-30 कैंडिडेट्स विच यू गॉट लाइक डायरेक्टली पिंग थ्रू लिंक्डइन और वट एवर एनी ग्रुप्स, और फिर उसमें से जो बेस्ट प्रोफाइल लगेगी उसको आप करोगे रेफर, राइट? एम आई रॉन्ग? इसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? तो आपकी प्रोफाइल इतनी डिसेंट होनी चाहिए, कहने का पॉइंट ये, जब आउट ऑफ 20 जब आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, उन 20 में आप टॉप 2-3 में आने चाहिए हो, तब आपके चांसेस है कि आपको रेफर कॉल मिलेगा। पर वो बंदा आपके मुंह पे नहीं बोलेगा कि यार अब योर प्रोफाइल इज नॉट दैट गुड तो आई एम नॉट रेफरिंग यू, ऐसा कोई बोलेगा नहीं अपफ्रंट, ठीक है? इस बात को आपको समझना होगा कि अपनी प्रोफाइल जेन्युइनली कितनी अच्छी है। तो आपका लिंक्डइन रिज्यूमे इतना सही रखो कि सामने वाले इंसान को आप पर क्रेडिटेबिलिटी, ट्रस्ट वगैरह आ जाए कि हाँ ये थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, तो इसको रेफर करना बनता है, और ये निकाल भी लेगा इंटरव्यू, इसके प्रोफाइल से थोड़ा सही लग रहा है, डिसेंट लग रहा है बंदा। समझ रहे हो आप? दैट्स द पॉइंट। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, इस पे काम करो, इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब बचता है बाकी थर्ड चीज अपना आईओएस के राउंड्स। तो आईओएस के राउंड्स के लिए ही पूरा बैच डिजाइन किया, जिसमें हम चाह रहे हैं कि सारे ही टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट ले लिए हैं, और कुछ छूट गया तो आप बता देना अपने डॉक में, हम एक एक टॉपिक पे जाएंगे थॉरोली, और विल मेक श्योर कि हम अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं आगे हर टॉपिक के। तो इनिशियली वी स्टार्टेड विद कि हम पहले बेसिक चीजें करें, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, देन वी आर प्लानिंग अ मॉक सेशंस आल्सो, व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन आई इनिशियली आल्सो। तो विल गो विद द मॉक सेशंस, ओके, जिसमें नॉट एवरी डे ऑब्वियसली, बट इन 2 वीक्स 3 वीक्स में एक मॉक सेक्शन, या विद इन अ मंथ में 1-2 आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, सो दैट कि आप जितने टॉपिक्स हो रहे हैं एटलीस्ट यू कैन रिलेट कि ओके अभी तक कितना मेरा हो गया लेवल, और उस पर आपको फीडबैक मिलते रहे। तो मैं और मेरे जैसे और मेंटर्स भी होंगे यहाँ पे जो आपके मॉक इंटरव्यूज लेंगे, ठीक है? और हम एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं जिसमें अगेन आप प्रैक्टिस करोगे। तो ये सारी चीजें अभी कमिंग वीक में प्लान है, दे विल स्टार्ट विद द डीएसए राउंड्स विद द प्रोजेक्ट, एंड मॉक इंटरव्यूज में भी टाइम रहेगा, क्योंकि एक इनफ सेट ऑफ टॉपिक्स हो जाए सो दैट कि इट मेक्स सेंस टू गो विद द मॉक इंटरव्यूज। कूल? तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो हम देखो सारा कंसर्न अपने कवर करना है, डीएसए वाला चीज, इंटरव्यू कॉल आनी चाहिए, और आईएएस के राउंड निकलने चाहिए। यही तो है, 3 चीजें ही होती है बस बेसिकली। और आईएएस के राउंड में आईएएस का कोर हो गया और आपका सिस्टम डिजाइन वाला, दोनों वैसे कह रहा हूँ मैं, तो वो उसको दोनों को मैं आईएएस में कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि आईएएस के कंटेक्स्ट में ही मैं सिस्टम डिजाइन राउंड होते हैं हम लोग के, राइट? तो दैट्स द पॉइंट। कूल? कोई किसी के एनी क्वेश्चंस, या इफ यू आर अलाइनिंग विद दिस, ओके विद दैट,
you can thumbs up. Cool. Yep. Thank you. तो फिर आज चलते हैं वापस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और ये चीजें मुझे थोड़ा आप लोगों से डिस्कस करना था, तो थैंक्स फॉर योर ओपिनियन एंड योर कॉल्स वोट्स। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर पे चलेंगे, और आई होप मैं, मतलब रिसेंट पोल लेट मी चेक कि कितने लोगों ने करा है। देखो पॉइंट यही है कि इफ यू एक्चुअली डू दैट असाइनमेंट्स, तो आपकी लर्निंग एक्चुअली ज्यादा होगी, आप रिलेट कर पाओगे, आपकी जल्दी लर्निंग भी होगी, आप ज्यादा स्ट्रांग भी फील करोगे। उस टॉपिक में यू फील मोर अंडर मोर, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी। दैट्स द मेन इंटेंशन। तो yesterday Imran actually shared, but today someone wants to go. Anyone else apart from Imran who almost covered or want to present your assignment? Anyone? आज लोग वीकेंड है, थोड़ा सा क्या सीन है? कुछ लोग आज नहीं भी हैं जो कल थे, बिकॉज ऑफ वीकेंड एंड देयर अवेलेबिलिटी। तो हाँ, कोई जाना चाहेगा? शगरा, यू ऑलमोस्ट कंप्लीटेड राइट? और पारुल और दिस निखिल, निखिल इज देयर? Hey, yeah, I am. I've Yeah. joined from while actually. I've stepped out. So yeah, So Nikhil, you have completed your assignment or kind of almost completed, right? yeah, it is almost complete. So Yesterday you told a few more functionalities like adding bookmarks and stuff. Those yeah, are remaining. Yeah, but that's fine. That's fine. You can quickly present your assignment here if you are actually I'm away from my Mac. okay. Uh, Okay, no problem then. Cool, but make sure कि you should share your progress or assignment in the group at least with the screenshots and recording and your GitHub repo links. So sure, that sure. would be, yeah. Even today Tarun shared, right? Tarun is there. Tarun right now. Yes, yes, Kusu. Tarun, you can present your assignment. Okay, one second. Mhm. Okay, Shagraf completed the previous one, couldn't. Cool, Shagraf. यस सर। तरुण क्विकली पहले तो रन करके एक बार सिमुलेटर पे दिखा दो, और फिर एक बार आप ओवरव्यू ब्रीफ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट का कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर। Yeah, okay. So basically, I have added some values in user defaults. Like if user is already logged in, then directly navigate to that tab bar stuff, right? इसमें एक चीज बताना, ऐसा करके समझाओ कि यूआई किट के बैकग्राउंड से हो आप भी, राइट? तो हाँ, यूआई किट वाले बंदे को आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि सॉफ्टवेयर में कैसे करना है चीज, इस कंटेक्स्ट से बताओ कि क्या आपने इसमें डिफरेंस फील किया और क्या सिमिलरिटी फील करी जब ये कर रहे थे आप प्रोजेक्ट। UI किट में भी हम लाइक व्हेन एप्लीकेशन ओपन होती है उस टाइम अपन चेक करते हैं कि यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है या नहीं है। जैसे कि यूजर डिफॉल्ट्स में कुछ डेटा अपन सेव रखते हैं या फिर कोई फ्लैग के थ्रू, राइट? देन बेस्ड ऑन दैट वी नेविगेट टू डिफरेंट राउट्स। लाइक अगर लॉगिन नहीं है तो ऑथेंटिकेशन स्टैक में चला जाएगा वो, या वी कैन से नेविगेशन फ्लो में। Otherwise, directly logged in flow where our tab bar or the main application view is there. So I have used like kind of coordinator pattern for navigation, because for every tab we can have different stack navigator, right? Or we can say navigation stack. So dynamically we can build
those routes for every tab, separate tab. So like for this bottom sheet, आपने उस टाइम हेल्प की थी मुझे कि आइडिया दिया था कि किस वे में अपन इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि टैब बार से ही ये शीट ओपन हो जाए बिहाइंड द टैब बार, राइट? बट ये सॉल्यूशन भी काइंड ऑफ नॉट ऑप्टिमाइज्ड as I can look into it. Like I have rendered the screens using this group, right? So here inside you can see one switch statement, right? So basically every time we change the tab, it is reinitiating the view, right? You can see this, like if I scroll to bottom, if I navigate back to this, then again come to top. So Arun, you Which- need to fix this actually. You haven't implemented it properly. Sorry. मैं कह रहा हूँ कि you haven't implemented it properly. You need to fix this thing. That's a Yes, bug. yes, yeah. I am looking into that. Cool. और basically from आप that- data कैसे कर रहे हैं? Are you passing data from one view to another view in your project? So right now everything is like static data, right? But like for this place, like I am using that view model, right? For home view model, and I can directly like access that view model on the detail screen, so I can show the full list of jobs here. And same for like if we mark any job as saved, then that will be added to our bookmark view model, right? And this screen basically rendering items from that bookmark view model. So Kind of view model में आप एक array maintain कर रहे हो, वहाँ mark कर रहे हो तो add कर रहे होंगे और यहाँ पे load yes, करेगा. yes, you can see like in bookmark view model, like I can add bookmark, remove or remove all, or can check like if any job is saved or not, checking with ID to show on that cards, right? But as of now, as I told you that it is re-rendering every view, so you can see that is removed from here. Cool. ठीक है. So like, we Overall can good job. आप remove- ये काम कीजिएगा. You can fix this thing. And अभी तक state binding ये सब use नहीं किया है, right? Environment object observed. yes, that I have used. Like you can see for this booking bookmark view model, right? So on the tab navigator, I have added this view model in environment object here. Okay. So on the bookmark screen, I can read that view model using that environment object here. Basically, because अपने को multiple places पे Multiple यूज access करना है करना. इसको, बिकॉज होम से भी अपन ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दैट्स व्हाई, और फ्रॉम एनी प्लेस, दैट्स व्हाई इसको रूट पे ही क्रिएट करके एनवायरनमेंट में पास किया हुआ है. Cool. ठीक है. और अभी तक API कॉलिंग तो पिक्चर में नहीं है, बट मैं आज आपको नहीं. वो खाली यूआई बनाया था ये. तो सब UI स्टार्ट है. ठीक है. Cool. Perfect. Okay. Thanks करो. थैंक यू. तो हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं फिर. आज हम लोग को देखो, ये मैं एक डॉक आई हैव रेडी वन बेसिक डॉक ऑन द स्ट्रीट मैनेजमेंट बेसिकली. तो लेट मी क्विकली प्रेजेंट इट. Let me know once my screen is visible. Is it visible? Right. Yep. Thanks. तो देखो अभी कैसा है कि हम लोगों ने इसके बारे में पहले एक बार जस्ट ऐसी बात की थी, और एक बेसिक सा डॉक है ये, आप आराम से इसको गो थ्रू कर सकते हो आफ्टर द सेशन आल्सो. तो एप्पल ने आपको कुछ तरीके दिए हैं. एप्पल प्रोवाइड्स यू सम टेक्निक और अप्रोचेस और सम बेस्ट प्रैक्टिसेस कि भाई इस केस में ये चीज कर लो और इसमें ये कर लो, या किसी किसी केस के लिए चीजें बनाई गई है. लाइक आपको लोकली स्टेट मेंटेन करनी है तो स्टेट वाला एक एट्रीब्यूट है जिससे
ये चीजें मैनेज हो रही है। ठीक है, स्टेट करके एक चीज है जो इवन आपको बहुत बेसिक कोड, यहाँ पे एक सैंपल डाला है कोड का, जैसे मैं एक व्यू यूज कर रहा हूँ, उसमें मुझे सिंपली मेरा काउंटर है काइंड ऑफ, तो मैं जब भी बटन में क्लिक करूंगा काउंटर बढ़ता जाएगा। तो ये काउंटर यहाँ से मैंने स्टेट पे यहाँ रखा हुआ है, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही वो वैल्यू चेंज होगी, ये व्यू फिर से बन जाएगा और अपडेट हो जाएगा मतलब व्यू बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से लोकल स्टेट मेंटेन करने के लिए एप्पल ने आपको ये दिया है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब जैसे मैंने अगेन बात करी थी यूआई किट में, अगेन हम लोग के वहाँ पे चीजें हम मैनुअली मैनेज करते हैं या फिर आरएक्स स्विफ्ट वगैरह यूज करके करते थे, या और भी तामझाम जुगाड़ करके करते थे। यहाँ पे एप्पल ने बोला कि तुम मत करो इतना तामझाम, हम लोगों ने वी प्रोवाइडेड यू इनबिल्ट दीज थिंग्स, आप बस उसको एट्रीब्यूट लगा दो, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है, तो एप्पल ने बोला कि आप ये करो, फिर व्यू को अपडेट कैसे करना है, क्या करना है, इंटरनली एप्पल एक्चुअली मैनेजिंग, वहां पे हमें खुद ट्रिगर करना पड़ता था, ये ऐसी चीजें करते थे हम, राइट, यूआई किट के अंदर। अगर हमें यूआई अपडेट करना है, व्यू को अपडेट करना है, लेबल की वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसके लिए हम कुछ बाइंडिंग्स करते थे, either through RX Swift again, या either through some other approaches or closer or callback or whatever. Okay, तो यहाँ पे एप्पल ने गिव्स यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे आप डेटा के साथ मैप दो, और जैसे ही डेटा चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, तो आपका व्यू अपडेट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और अगेन यहाँ पे मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पे रेफरेंस टाइप्स थी चीजें, वहाँ पे इन यूआई किट योर एवरी यूआई व्यू, यूआई लेबल, बटन, ऑल आर क्लास रेफरेंस टाइप। यहाँ पे ये सारा व्यू आपका स्ट्रक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट ये एप्पल तो मेंटेन करवा रहा है, बट द पॉइंट इज कि ये सब वैल्यू टाइप्स है, रेफरेंस टाइप नहीं है ये। इस बात को समझो, यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है सबसे बड़ा। ठीक है, तो उस पर हम आएंगे डीप डाइव में कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, और उस पर फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, डे टू डे में हमें फिर कौन सी चीजें जो हमको ध्यान रखनी होगी while developing these software app, okay, और ऐप इन सॉफ्टवेयर। अभी के लिए इतना समझो, लोकल स्टेट मेंटेन करेगा, तो आप सिंपली, अगर आपका रिक्वायरमेंट इतना है कि इफ यू ओनली वांट टू मेंटेन लोकल स्टेट, तो आप इसके साथ जा सकते हो बिंदास। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर एक है कि बाइंडिंग वाला चीज है, जो नॉर्मली दे आर रिकमेंडिंग कि पेरेंट चाइल्ड वाले कंटेक्स्ट में होता है ये, कि आपका पेरेंट चाइल्ड वाला व्यू हायरार्की है, उसमें आपको डेटा पास करना है, मैप करना है, बाइंडिंग करनी है, तो एक बाइंडिंग करके एट्रीब्यूट दिया है। बाइंडिंग बेसिकली कुछ नहीं कर रहा है, आपको एक से दूसरी जगह पे एक तार जोड़ दिया है, लाइक यू एंड मी, लाइक सपोज वी हैव अ चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, वी आर रिलेटेड। तो अपने बीच में एक सम, सपोज करो एक ये एक बॉक्स है मेरा, इससे मैंने आप और दोनों हम लोग उसको रेफर कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को चेंज होगी, मतलब अपडेट हो जाएगा दोनों साइड पे काइंड ऑफ, आप चेंज करोगे मैं अपडेट कर लूंगा, इस तरीके से समथिंग। ठीक है, तो इट्स अ बाइंडिंग एट्रीब्यूट। अगर इसके डॉक में आप डेफिनेशन वगैरह पढ़ सकते हो, तो इट्स अ टू वे कनेक्शन बिटवीन अ पेरेंट व्यू एंड अ चाइल्ड व्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड रीड कर रहा है, दूसरा मॉडिफाई करेगा, इस तरीके से चीजें हैं, और मतलब अल्टीमेटली दोनों लोग इसको रेफर कर रहे हैं, एक जो मॉडिफाई करेगा, दूसरा रीड कर रहा है, लाइक दैट। और रेफरेंस हुआ म्यूटेबल वैल्यू, म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं, राइट, इम्यूटेबल नहीं है। और ओरिजिनल सोर्स टू द स्टेट इज अपडेटेड, द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट द चेंज इन ऑल डिपेंडेंट व्यूज। तो इसमें अगेन ऐसा भी चीज है कि स्टेट आपने डिफाइन किया हुआ है, और अगर आप उसको चेंज किया तो वो ऑटोमेटिक जितने भी उसके डिपेंडेंट व्यूज है चेंज कर देगा वो उसको, मतलब व्यूज अपडेट हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से चीज है ये। अब मैं खुद चाहता हूँ आप आफ्टर दिस सेशन यू विल एक्सप्लोर ऑन योर ओन ऑल्सो। ठीक है, हम बहुत बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं अभी, कि एक लोकल स्टेट मेंटेन करनी जहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, पेरेंट व्यू वाला कंटेक्स्ट नहीं है, तो स्टेट से ही काम हो जाएगा आपका। एक जहाँ पे ऐसा है कि पेरेंट चाइल्ड की कंटेक्स्ट में डिपेंडेंसी है एक दूसरे में, ये एक रिलेशन है, और वहां पे आपको डेटा पास करना है या चीजें एक्सचेंज करनी है, तो उसके लिए बाइंडिंग वाली चीज बनाई गई है। और फिर उसके आगे आप आओगे तो फिर ये है जहाँ पे एक्सटर्नल चीजों के साथ आपको चीजें शेयर करनी है या रेफरेंस करनी है, रेफर करनी है। तो देखो यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे लिखा है कि यूज टू ऑब्जर्व चेंजेस इन एन एक्सटर्नल रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, फिर ये प्रोटोकॉल कंफर्म करना पड़ता है, प्रोटोकॉल है ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल, बेसिकली ऑब्जर्व करोगे आप इसमें, और इसमें वो पेरेंट चाइल्ड के बाहर भी जो आपका सीन है उस सब में ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है, दिस इज लाइक अ जनरिक, इस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा फिर और स्टेट ऑब्जेक्ट करके एक चीज है, और एक आपका एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट है। एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट इज लाइक योर होल एनवायरमेंट में आपको चीजें एक्सेसिबल होंगी, जो कि अभी आप तरुण बात कर रहे थे, यूजर डिफॉल्ट वगैरह भी होते हैं अपने, उस तरह के कंटेक्स्ट में समझ सकते हो आप इसको, और इवन ही इज यूजिंग ऑलरेडी इन हिज प्रोजेक्ट। तो आपको इन्वायरमेंट स्पेसिफिक पूरे ऐप में कुछ इन्वायरमेंट स्पेसिफिक आप चीजें रखना चाह रहे हो, या उस पर्टिकुलर व्यू स्पेसिफिक में अगेन आगे जैसे और भी इसको लोग शेयर कर सके दूसरे व्यूज में, कंट्रोलर में, स्क्रीन में काइंड ऑफ,
उस तरह के कंटेक्स्ट के लिए आपको एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक यूजर नेम ये लोग बोल रहे हैं और ये यूजर नेम है और एक मोड यहाँ पे लिया हुआ है, लाइट और डार्क मोड होता है अपने इसमें। तो ये चीजें हमें पूरे ऐप लेवल पे मेंटेन करते हैं हम लोग, राइट, कि भाई इसका यूजर नेम हो सकता है पूरी ऐप में कई जगह दिखा रहे हो, या उसका लोगो या आइकन कुछ दिखा रहे होंगे, ठीक है, या फिर और उसका लाइट या डार्क थीम भी हम मेंटेन कर रहे हैं हर स्क्रीन पे। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स बना दिए और उसको फिर हम एनवायरनमेंट लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, लाइक दैट। इसको ऐप सेटिंग्स में डाल दिया है। ऐप सेटिंग में 2 एट्रीब्यूट है, एक लाइट डार्क मोड का है और एक आपका यूजर नेम है, ठीक है। फिर इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, ओवरऑल आपके कहीं भी जहाँ भी करना है। या आप देखो यहाँ पे ये आपका यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऐप सेटिंग का एट्रीब्यूट आपने यहाँ पास किया हुआ है, वो मैप्ड हुआ हुआ है एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट से। और फिर हम अंदर जाके क्या कर रहे हैं, इसका यूजर नेम, जैसे मैं बोला कहीं भी हम दिखा रहे होते हैं यूजर नेम पूरी ऐप के अंदर, यहाँ पे वो भाई साहब जी यूजर नेम दिखा रहे हैं, काइंड ऑफ वेलकम राहुल, वेलकम कुशल, जो भी, राइट। और फिर उसके डार्क मोड के ऊपर वो चीजें सेट कर रहा है, वहां पे लिखा हुआ भी आ रहा है, कहीं तो एक लेबल भी होगी यहाँ पे लिखा आ रहा है कि लाइट थीम ऑन है कि डार्क थीम ऑन है। और इस बेसिस पे ही आप अपने व्यूज के कलर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये डेटा पूरे ऐप में एक्सेसिबल है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट आपने यूज किया इसके लिए इंटेंशनली, राइट। तो इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। फिर ये एक और चीज है, इसको मैं अभी के लिए इग्नोर करेंगे हम लोग। तो ये बहुत बेसिक चीज है, मैं बोलूंगा यू व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली स्टार्ट करो विथ कि ओके लोकली स्टेट मेंटेन करनी है तो स्टेट से काम हो जाएगा। पेरेंट चाइल्ड वाले के लिए मैं देखूंगा कि मेरा बाइंडिंग से काम हो जाए, और फिर मैं एक एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट वाला देखूंगा, फिर ऑब्जर्व्ड उस पर भी हम आएंगे बाद में, ठीक है। वो अगेन यू कैन ट्राई, मतलब मना नहीं है ट्राई करने के लिए, बट विल कम इनटू दैट इन डिटेल। यहां तक क्लियर है कि स्टेट बाइंडिंग और आपका एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूजेबल है, करते हैं हम लोग, डे टू डे में यूज करते हैं इसको, और पूछ भी लेते हैं, बेसिक डिफरेंस पूछ लेते हैं लोग, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है सच स्टेट वाला थिंग। और आपका जितना भी आप सॉफ्टवेयर में काम करोगे तो आपको ऑब्वियसली डे टू डे में स्टेट मेंटेन करनी है, राइट। तो ये तो डे टू डे में आपको लगेगा, तो वी आर मतलब आप बहुत यूज्ड टू हो जाओगे उसको लेके once you start using this, right? Anyone has any concern on this? और बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको अभी अपने असाइनमेंट में भी इसको यूज करना है, और ये डॉक्स खुद से थोड़ा गो थ्रू करके इसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। हम उसको अगले सेशन में डीप डाइव करेंगे, ठीक है। पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए कि नॉर्मली अगेन जैसे मैं बोला यूआई किट में हम लोग ये चीजें करते थे, बट विद अदर अप्रोचेस। यहाँ पे एप्पल ने आपको चीजें दे दी है, वहां पे ऐसा कुछ ये चीजें थी नहीं, राइट, स्टेट वगैरह और ये बाइंडिंग और ये एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट, इस तरह की चीजें नहीं थी वहां पे, राइट। पर कॉन्सेप्चुअली वहां पे भी चीजें होती थी इस तरह की चीजें, बस हम अलग तरीके से करते थे। वी एक्चुअली अचीविंग द सेम बिहेवियर बट थ्रू अदर अप्रोचेस और थ्रू अदर लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क। और यहाँ पे एप्पल एक्चुअली प्रोवाइडेड इनबिल्ट इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, बस इतना ही है, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो उस चीज को, हम सब कर सकते हैं। लोकल स्टेट मेंटेन करना, पेरेंट चाइल्ड मेंटेन करना, और एनवायरनमेंट लेवल पे मेंटेन करनी है, मतलब ऐप लेवल पे। इतना समझ पा रहे हो जी? एनीवन एल्स? यू कैन थम्स अप या। तो अगेन डरने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीजें। तो आज आप लोग जाके व्हाट यू कैन डू, आप लोग उसमें डेटा पास करो वन स्क्रीन से अनदर स्क्रीन में, ठीक है। कुछ चीजें अपने असाइनमेंट में, जैसे प्रोफाइल है अपनी स्क्रीन में, आपको दिख रहा होगा अभी यूजर का प्रोफाइल भी है, राइट, जो जॉब वाला ऐप है अपना ही। तो उसके आप एनवायरमेंट लेवल पे चीजें मेंटेन करो, उसका यूजर नेम हो गया, उसके और भी चीजें होंगी, वो आप मेंटेन करो, ठीक है। आप भी ये लाइट डार्क थीम वाला चीज ले सकते हो, तो ये आप मेंटेन करो। इस तरीके से आप अपने एनवायरमेंट लेवल पे भी चीजें करो। लोकल स्टेट वाली के लिए स्टेट का यूज करोगे आप, बाइंडिंग के लिए बाइंडिंग लगाओ, और फिर बाकी चीजें भी ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट और वो सब भी करो आप, ठीक है। ये आप एक बार पहले खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको लेंगे सेशन के अंदर। क्योंकि जब आप खुद से ट्राई करते हो ना, तो कई चीजें तो आप खुद से ट्राई करके सीख जाओगे, और कुछ चीजें जिनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग हमारी सेशन में हम उसको कवर करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ उस चीज को। तो आई होप, मुझे लगता है कुछ लोग ऑलरेडी अवेयर है फॉर दिस, राइट। हाँ, थम्स अप कर सकते हो, हैंड्स ऑन, हैंड रेज कर सकते हो। ऑलरेडी अवेयर होंगे कई लोग, कुछ लोग नहीं होंगे। तो आप आज और कल का टाइम होगा आपके पास, आप जाके करो एक्सप्लोर, पॉइंट ये है, ठीक है। पहले खुद से एक अटेम्प्ट दो, फिर हम लोग उस पर आएंगे। यस इमरान, यू वांट टू से समथिंग? या यू सिंपली एक्नॉलेजिंग दिस? ठीक है, लेट मी No, Kushal. Actually, I हाँ, thought like, let me share. Like, I know all those things, like the you state already binding. Oh, yeah.
ठीक है, तो कैसा अगर रहा आपका एक्सपीरियंस? इजी है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, या इसमें कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स लगा आपको? No, it's as of now, it's easy. Like all the state binding, environment, या state object, it's easy. ठीक है, देखो एप्पल इसको एक्चुअली यही ध्यान में रखते बनाया गया है स्विफ्ट यूआई को कि बहुत इजी रखी चीजें, ऐसा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कुछ रेयर सिनेरियो हो सकते हैं जहाँ पे शायद आपको कॉम्प्लेक्स जाए, बट मैं बहुत बेसिक सिनेरियोस की बात कर रहा हूँ अभी, कुछ एज केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा तामझाम करना पड़े या यू नीड टू डू सम वर्क अराउंड ऑन दैट, पर नॉर्मली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स है। ठीक है, इसके लिए आप अपने डॉग्स, मैं कुछ आर्टिकल लिंक्स दूंगा आपको, गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, इम्प्लीमेंटेड एक्चुअली मैं कहूंगा इवन ज्यादा आप सीखोगे खुद से इम्प्लीमेंट करके चीजें, और थोड़ा सा बेसिक आइडिया अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप एक दो आर्टिकल या वीडियो को रेफर करो, उतना करके खुद से ट्राई करो, और फिर हम देखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो आधी से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तो आपको खुद से आ ही जाएगी ऑलरेडी जब आप खुद से ट्राई करोगे इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एमबीवीएम पे। एमबीवीएम पे अगेन उस दिन मैंने जैसे एक वन लाइनर बात करी थी, बट आपका यूआई किट में जो एमबीवीएम आप करते आ रहे हो वही एमबीवीएम यहाँ पे भी है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग अपना अभी भी जितना भी, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जो असाइनमेंट आप कर रहे हो या अभी तक बहुत बेसिक इनिशिएट ही किया या स्टार्ट करने वाले हो या कर चुके हो, जितना भी कर रहे हो वो सारा एमबीवीएम में ही करो आप। ठीक है, तो आपका एक एमबीवीएम पे हैंड्स ऑन हो जाएगा ऑलरेडी। आई मतलब एक्सपेक्ट कि एमबीवीएम सबको आता होगा, पर नहीं आता है तो फिर हम उसको अलग से लेंगे एमबीवीएम को। पर अभी के लिए वी आर अज्यूमिंग कि क्योंकि हम लोग सब मोस्टली सीनियर यहाँ पे एक्सपीरियंस आईओएस के लोग हैं, तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग एमबीवीएम राइट फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, राइट, और सिंस लॉन्ग बैक लाइक 5-10 इयर्स। तो एमबीवीएम की चीजें जो वहां पे थी अपने यूआई किट में वो यहाँ पे भी है, बस वहां पे व्यू कंट्रोलर होता था व्यू के कंपोनेंट में, यहाँ पे वो व्यू से रिप्लेस हो गया है, बट मोटा मोटा सेम है चीजें। व्यू मॉडल आपका अभी भी वही रोल प्ले कर रहा है, और मॉडल अभी भी वही है आपका जो वहां पे होता था, उसमें कुछ बदला नहीं है सच। आप जो लोग एमवीवीएम सॉफ्टवेयर में देखे हैं यू कैन थम्स अप, सही बोल रहा हूँ मैं या गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, चीजें सेम ही है, कुछ खास फर्क नहीं है, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, तो उसमें कुछ भी ऐसा मत सोचना कि कुशल स्विफ्ट का एमवीवीएम पता नहीं क्या ही होगा और यूआई किट का कुछ अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम है सब कुछ। ठीक है, बस मैं जैसे मैंने अगेन उस दिन भी बोला था, आईओएस कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है, जस्ट यूआई किट फ्रेमवर्क चेंज हुई है। ठीक है, तो उसके लिए नई चीजें आ गई है जो अपन पहली बार देख रहे हैं, काइंड ऑफ जो लोग पहली बार सॉफ्टवेयर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे व्यू स्ट्रक्ट टाइप हो गया है, ठीक है, वैल्यू टाइप हो गया है, यहाँ पे थोड़ा एक डिक्लेरेटिव कोड करना पड़ रहा है, फिर यहाँ पे स्टेट मेंटेन वाला कॉन्सेप्ट है जो कि यूआई किट में नहीं था। ये कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आए। फिर यहाँ पे नेविगेशन भी अलग तरीके से होता है, नेविगेशन पे मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, हम आएंगे बाद में उसमें। पर यहाँ पे नेविगेशन और वहाँ पे नेविगेशन थोड़ा अलग है, पर हाँ मतलब वही करने की अप्रोच अलग है, बट वहाँ पे भी स्टैक दोनों में काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है स्टैक का। तो समझ पा रहे इस बात को आप? चीजें सिमिलर है, बस थोड़ा अप्रोच बदल गई है, और यूआई लेवल पे चीजें हुई है, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो चाहे फिर वो आपका एमवीवीएम हो, चाहे एपीआई कॉलिंग हो, चाहे और बाकी जो चीजें हैं वो अपनी जगह अभी भी वही है, उसमें कुछ खास बदला नहीं है। ठीक है, तो उसमें मत समझ लेना कि आप चीजें बदल गई हैं कि पूरा ही कंप्लीटली चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेट मी ओपन दिस डॉक जो अपना जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन द डॉक। असिंग अवेट पे मैं आ रहा हूँ। अभी आपको एक टास्क है, आपको मैं मॉक वाले ये दूंगा रेफरेंस, आप नॉर्मल बेसिक मॉक एपीआई कॉलिंग करो सॉफ्टवेयर के अंदर, और उसका कोड आपको असिंग अवेट में लिखना है खुद से पहले। ठीक है, बहुत इजी उल्टे एक्चुअली, लेस नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड, और उसका बेसिक आर्टिकल और वो भी मिलेगा। एक बार जस्ट गो थ्रू करोगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आई एज्यूम हम ऑलरेडी कवर किए हैं, मल्टी थ्रेडिंग डिस्पैच के ये सब आपने पहले देख लिया है, तो उससे आप रिलेट करोगे तो इट्स वेरी इजी एक्चुअली। एप्पल ने इसको और इजी बनाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट लेकर आए। ये पहले जीसीडी से हो रहा था ये सारी चीजें, या और दूसरे तरीके से हो रहा था, अब उसको और इजी कर दिया और क्लीन कर दिया और स्मूथ कर दिया चीजों को। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखा है फालतू का। तो यहाँ पे कोड बेस मैंने रखा था, लेट मी जस्ट सी वेयर इट इज, वेट, हाँ दिस वन, ये रहा। ठीक है, मैं ये डॉक पे शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये हमारा वही डॉक है ओरिजिनल वाला, इसको मैं री अगेन वापस मैं आपको इस पे लेके जा रहा हूँ।
दिख रहा है डॉक? तुम सब स्क्रीन दिख रही होगी। यप, थैंक्स। तो देखो हम लोगों ने उस दिन ये देखा था ये चीज कि आपका अभी तक जो हमारा ट्रेडिशनल वे उसमें हम लोग इस तरीके से एपीआई कॉल कर रहे हैं नॉर्मली। यूआरएल सेशन की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, तो उसमें आप नॉर्मली टास्क बना रहे हो, यूआरएल को ऑब्जेक्ट बनाते हो, फिर ये क्लोजर कॉल बैक जाता है, उसमें आपको ये एक रेस्पॉन्स एरर आता है हमको नॉर्मली, राइट। फिर हम चेक करते हैं कि वो निल तो नहीं है नॉल, फिर उसको हम डिकोडिंग करते हैं, राइट, जेसन डिकोडर से। और फिर हम लोग अगर मान लो एरर आ गया तो कंप्लीशन कॉल बैक में एरर भेज देते हैं, और नहीं आया है तो फिर हम उसको यूआई पे अगर अपडेट करना है तो डिस्पैच और मेन असिंग से करते हैं, और नहीं है सिंपली कोई मॉडल अपडेट करना है तो उसकी जरूरत नहीं है फिर, तो फिर आप बिना उसके भी करते हो। पर ये इतना तामझाम हमें करना पड़ता है मोटा मोटा नॉर्मल यूआरएल सेशन की जो ईपीआई कॉलिंग है, राइट। पर अब मान लो यही चीज आपको जो मैं बोला, इतनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख रहे हो, इतना तामझाम, ये सारा तामझाम की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली देखोगे तो इतना सा ये 4 लाइन में बदल गया पूरा, 3-4 लाइन के कोड से, और ये ज्यादा क्लीनर चीज है। इसमें क्या बोल रहा है, ये यूआरएल का ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ही, वो तो पहले वहां भी हो रहा था, बट अब यहाँ पे देखो 2 लाइन में सारा खेल खत्म हो गया है। ये बोल रहा है कि भाई करो कॉल, रिक्वेस्ट मारो, मतलब ठीक है, यूआरएल सेशन से ही मार रहा है अभी भी, कोई अलग फ्रेमवर्क नहीं आई है, यूआरएल सेशन ही अपना पुराना वाला, बस वहां पे जो टिपिकल अप्रोच थी उसको असिंक का वेट से मैप कर दिया। तो ये बोल रहा है कॉल मारो, जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं यहाँ वेट करूंगा, ठीक है, वेट करूंगा बट असिंक्रोनसली वेट करूंगा, ध्यान रखना, सिंक्रोनसली नहीं, असिंक्रोनसली बैकग्राउंड थ्रेड पे चलता रहेगा। पर जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आएगा यहाँ पे, यस सही क्वेश्चन। I already shared this doc. Again, I will share if you join later in the group now. I will share again. तो ये असिंक्रोनसली वेट करेगा, जैसे रिजल्ट आ जाएगा, ये डेटा में रिजल्ट आएगा और इस डेटा को फिर आप यहाँ पे डिकोड कर रहे हो, राइट, बस खत्म। डिकोड करके आपने रिटर्न मार दिया और यहाँ से डेटा चला गया इस मेथड में, राइट। कोई कंप्लीशन कॉल बैक नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई इतने सारा ये जो हम करते आते थे, ये कंप्लीशन, ये कॉल बैक, ये क्लोजर्स, ये सब की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो कितना क्लीन कोड हो गया ये कॉल मारा, ये वेट किया, रिजल्ट आते, रिजल्ट आके डिकोड करके, और ट्राई कैच भी लगा हुआ है, और आप जहां से इसको कॉल करोगे वहां पे ट्राई कैच, वहां पे आप गेट भी करोगे, फैच कोड जहां से कॉल हो रहा होगा, ये देखो उसका नीचे कोड भी होगा, ये देखो। तो इसको आप कॉल करते हो और इसमें कैच भी रखते हो, इन केस मान लो कोई एरर आया तो कैच में आके आप हैंडल कर लोगे, फिर अपने एरर हैंडलिंग कर लोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो इनबिल्ट ही अपन ने इसको ना जानबूझ के ट्राई के साथ ही यूज करना पड़ता है, ये इसके बिना करोगे नहीं आप। तो ट्राई कैच यहाँ पे इनबिल्ट डाल के रखा है इन लोगों ने, वहां पे हमको मैनुअली करनी पड़ती थी वो चीजें यहाँ पे, ठीक है। पर यहाँ पे इन लोगों ने ये चीजें इंटीग्रेट करके रखी, और अगेन वही बहुत क्लीनर कोड एक्सपीरियंस है, और इतना तामझाम नहीं है, आपको लिटरली देख के बहुत अच्छा फील आएगा। इसके साथ 1-2 बार एपीआई कॉल कर लो, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, और फिर ये करना छोड़ ही दोगे आप, ये सब तामझाम नहीं करोगे फिर, ये जो अभी हम करते आ रहे हैं, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा, हम सब कर सकते हो। तो आपको सिंपली अपने असाइनमेंट में आज ही जाके आ जाए, कल जब भी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन वी आर प्लानिंग ऑन मोस्टली मंडे, टुमारो हम लोग ऑफ रखेंगे। अभी मैंने देखा कई लोग के असाइनमेंट्स नहीं हुए, तो वी नीड टू गिव सम टाइम, और कुछ वीकेंड पे लोग के प्लान्स भी होते हैं, तो लोग आज इसलिए कुछ लोग कम भी है जो लास्ट सेशन में थे, वो अभी नहीं है थोड़े। पर द पॉइंट इज कि आप लोग जितने असाइनमेंट जिन्होंने नहीं किया अभी तक या बहुत कम लेवल पे किया है, तो वो लोग पहले तो यूआई वाइज इसको कंप्लीट करो, उसके साथ साथ आप मॉक एपीआईज लो। मैं कुछ वेबसाइट्स देता हूँ, वहाँ पे आप डमी एपीआईज अपने बना सकते हो, आप खुद से भी गूगल करोगे डमी एपीआईज, तो बहुत सारे 2-4 वेबसाइट आ जाएंगी जो बहुत सही चलती हैं। आप बिंदास जाओ वहाँ पे, एक लोकल अपना एक एंड पॉइंट बनाओ, उसमें आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आप खुद डिसाइड करते हो, अपना डिसाइड करो, और उसके साथ खेलो फिर अपना इधर। अब उसमें चाहो तो अपना पूरा जॉब वाला जो डेटा दिखा रहे हो उस तरह का एट्रीब्यूट डेटा भी बना सकते हो, वहाँ पे अपना जेसन उस तरह को डिजाइन कर सकते हो। नहीं करना अभी के लिए तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी डमी वहाँ पे डाल दो, और मेन कंसर्न है कि आप एपीआई कॉल कर पाओ, पॉइंट ये असिंक का वेट यूज करके, ठीक है। तो इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा असिंक का वेट का। तो ये आपको करना है एपीआई कॉलिंग। दूसरा आपको क्या करना है, आपको जो अभी स्टेट मैनेजमेंट वाला अपन ने डिस्कस किया वो करना है, आपको स्टेट बाइंडिंग एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट और ये सारी चीजें करनी है यूज, ठीक है। उसके अलावा भी जो भी आप यूज कर सकते हो खुद से करना है पहले ट्राई। और तीसरा आपको जो भी आप कोड कर रहे हो मेक श्योर कि आप एमवीवीएम में कर रहे हो अभी, ठीक है। तो एमवीवीएम वाली अप्रोच लेके करो। इस पे अगेन 1 या 2 मैंने एक आर्टिकल ऑलरेडी शेयर किया था, राइट, एमवीवीएम पे। एक और मेरे को अच्छा मिला था, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा गो थ्रू कर लो, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, फिर आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एमवीवीएम जो अभी तक यूआई किट में कर रहे हो वही चीज है। तो आई होप, मतलब मुझे नहीं लगता कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी, बट स्टिल आएगी तो हम देख लेंगे, ठीक है।
कूल। तो आज के लिए इतना ही है, अभी के लिए हम रैप अप कर सकते हैं। आज आप लोगों को 3 टास्क है, बट रियली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नेक्स्ट सेशन में करके आओगे। और इन द मीन टाइम जिनका होते जा रहा है ग्रुप में अपडेट शेयर करते जाओ, और कहीं कोई चैलेंज आ रहा है तो वो भी आप ग्रुप पे डालो बिंदास। पर फर्स्ट ट्राई करोगे खुद से पहले फाइट मारो, इससे आपकी ज्यादा लर्निंग होगी, ये बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो कल हम लोग ऑफ रखेंगे, आपके पास आज का दिन है आधा, लाइक मतलब आज ऑब्वियसली इंडिया में तो अभी शाम लेट हो गया, बट हाँ काइंड ऑफ कल का पूरा दिन है, और मंडे को भी लेट इवनिंग अपना सेशन होगा, तो इनफ टाइम यू हैव, ठीक है। तो उसमें आप ट्राई करो कंप्लीट करने का और चीजें खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, ठीक है। साउंड्स गुड, thumbs up, and we can wrap up and then we can see you on Monday. और हाँ दूसरी बात जो लिंक्डइन उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप पे ऑलरेडी डाला है, अगेन आई विल शेयर। तो आप लोग कल 2 बजे दिन में सेशन है, जिनको लिंक्डइन और रिज्यूमे पे हेल्प चाहिए और हाउ टू गेट अ जेन्युइन रेफरल्स, तो कल दिन में 2 बजे यू कैन ज्वाइन, ठीक है। आई विल शेयर द लिंक इन आवर ग्रुप, ओके। उसका मैं एक कर दूंगा, जो जो इंटरेस्टेड है वो लोग उसमें अलग से उसका एक ग्रुप बनाया हुआ, उसमें आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा, ओके कूल, ठीक है देन। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी वीकेंड एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू।